ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಈಗ ಪೂಜ್ಯರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ स्वागत ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ आता महाराज आपली स्वामीजी येणार आहे. सगळ्यांना विनंती आहे, उभं राहून सगळ्यांना त्यांना स्वागत करू. शिवन प्रकाशा शिवन प्रकाशा शिवन प्रकाशा कल्याण बिंबा प्रणतेयल्ली भक्तिरस बिंबा तैलवनिरेदु 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 आ ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದರಯ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಮಥ ಗಣಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಮಥ ಗಣಗಳು ಶಿವಭಕ್ತರಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬುದು ಹುಸಿಗೆ. ಶಿವಭಕ್ತರಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬುದು ಹುಸಿಗೆ. ಶಿವಭಕ್ತರಿದ್ದ ದೇಶ ಪಾವನವೆಂಬುದು ಹುಸಿಗೆ. ಶಿವಭಕ್ತರಿದ್ದ ದೇಶ ಪಾವನವೆಂಬುದು ಹುಸಿಗೆ. ಪಾವನವೆಂಬುದು ಹುಸಿಗೆ. ಪಾವನವೆಂಬುದು ಹುಸಿಗೆ. ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ. ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ. ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ. ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ. ಸಂಗನ ಬಸವನ ಮಹಿಮೆಯ ನೋಡ. ಸಂಗನ ಬಸವನ ಮಹಿಮೆಯ ನೋಡ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ. ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಪ್ರಣತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸವೆಂಬ ತೈಲವನೆರೆದು. ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಪ್ರಣತೆ ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಪ್ರಣತೆಯಲ್ಲಿ Yellarigu Sharnu Sharnarthi, respected saints, dignitaries and elders, I, Mahi Sunil Patil, feel honored to stand before you today to share a few words about two guiding lights of our community, Mahatma Basveshwar and His Holiness Param Pujya Sri Siddharam Mahaswamiji. Mahatma Basveshwar, the 12th century philosopher, poet and statesman, was a true visionary. He stood firmly against social discrimination and worked for society based on equality, truth and compassion. His Anubhav Mandap, a platform where ideas of justice, dignity and harmony were discussed openly, values that are still relevant in our lives today. Following in his footsteps, Param Pujya Sri Siddharam Mahaswamiji, the present Jagat Guru of Tontadarya Mutt, is guiding thousands with his spiritual wisdom, humility and tireless service. It was Siddhalinga Swamiji who had purchased land in Mumbai with the dream of building a mutt. But because of his sudden passing, this dream remained unfulfilled. Today, Siddharam Mahaswamiji of Gadag has lovingly taken up this responsibility and is working on it with great dedication in Karzat, Mumbai. The planning for this construction on this sacred land has begun, a place for our Lingayat community, so the future generations will continue to walk in his footsteps and follow the teachings of Mahatma Basveshwar Maharaj. As we come together for this holy project, let us remember we are not just building a structure, we are creating a living space for unity, spirituality and service. May the blessings of Mahatma Basveshwar and the divine guidance of His Holiness Dr. Siddharam Mahaswamiji inspire us to live with truth,
compassion, and unity. And may this noble project flourish for generations to come. Last but not the least, I would like to thank Manshettar uncle for organizing this lovely program and giving me an opportunity to speak in front of you all. Thank you and Sharnu Sharnarthi. के सभी लिंगायत जन के तरफ से हम लोग इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। महात्मा बसवेश्वर महाराज की, यडूर श्री सिद्धलिंगेश्वर महाराज की, जगत गुरु महात्मा बसवेश्वर महाराज की। जोरात यायला पाहिजे, आपण स्वागत करतोय। महात्मा बसवेश्वर महाराज की, जगत गुरु महात्मा बसवेश्वर महाराज की। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೇಹಾಂತಿತರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಟಜಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಶೀನಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೆವೋಟೀಸ್ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ। ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। I never expected। किधर किधर से आया। सो आई फील दिस इज रियल अनुभव मंटप। जो 12वां साल में, जो 12वां शताब्दी में जो महात्मा बसवेश्वर जी ने जो पार्लियामेंट जो बनाए थे, आज वही चीज़ महात्मा बसवेश्वर अनुभव मंटप का बॉम्बे चैप्टर फर्स्ट अनुभव मंटप ये हो रहा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है अभी। रियली इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग। क्यों? वो टाइम पे ऑल ओवर इंडिया किधर किधर से सभी राज्यों से अनुभव मंटप पे आए थे। यू राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, मोड़िए मारैया, अफगानिस्तान से भी आए थे सब लोग, इधर आके रहते थे। सो आज नई मुंबई रीजन मुलुंड से आज खास करके ये प्रोग्राम पे गुलबर्गा से भी आया है, और सोलापुर से भी आया है, और कपोली और डोंबिवली, सब पूरे चारों तरफ मैं बोलते जाएगा तो सब जगह में से ये जमा हो चुका है। इट इज़ ए रियल अनुभव मंटप। सब लोग क्यों जमा हो गया? दे वांटेड टू शेयर देयर हार्टली देयर फीलिंग्स। जो हम जो अनुभव मंटप जो बनाने वाले हैं उसको किस तरीके से रूपरेश देने का है, दे वांट टू सजेस्ट अस। इट इज़ रियली वंडरफुल फीलिंग। क्यों? हमारा दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ रख के हम जा रहे थे। आई विल शेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड। उसका बाद में आप बोल सकते हैं नहीं ये सही नहीं है, ये ऐसा करना मांगता है। दैट इज द रीजन वी हैव कॉल्ड यू ऑल द पीपल हियर। रियली इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग। अनुभव मंटप बोलेगा तो मेरा दोस्त एक बोला है, मेरे मिसेस को भी लेके आऊँ क्या? भाई साहब 33% रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट में बनाया है, लेके आइए। अनुभव मंटप में मोस्ट ऑफ द लेडीज वेर देयर। 33 लेडीज पोइट्स वेर देयर। 33 लेडीज पोइट्स। आप इमेजिन कर सकते हैं अनुभव मंटप में 12th सेंचुरी में। इट वॉज ऑल हेडिंग बाय अक्का महादेवी। अक्का महादेवी बोलेगा तो मेरे को एक आई एम गोइंग लिटिल आउट ऑफ द वे, बट स्टिल आई फील आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग। क्यों? मैं बचपन से मेरा अक्का महादेव का एक वचन मेरे को गुनगुनाते रहता हूँ। जस्ट आई विल एक्सप्रेस इन कन्नड़। ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ
मृगಗಳಿಗೆ अंजिदೊಡೆಂತಯ್ಯ. आप है ना, यू हैव टेकन योर डिसीजन. एक पहाड़ी का ऊपर है ना एक घर बनाएगा. एक घर आपने डिसीजन लिया है, घर बनाया, then why to bother about all the wild animals? You have to face it. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ. ಸಮುದ್ರದ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಟೈರ್, ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸಮುದ್ರದ ದಡೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೆರೆ ತೊರೆಗಳಿಗೆ अंजिदೊಡೆಂತಯ್ಯ. आप घर का एक सागर का सामने एक घर बनाए. आप घर बनाने के बाद उसका जो फ्लडिंग होता है, उसका आवाज से क्यों डरने का है? यू हैव टेकन द डिसीजन. आप रहो उधर. ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ नाचिदೊಡೆಂತಯ್ಯ. आप डिसीजन लिया है एक मार्केट प्लेस में एक घर बनाने का. मार्केट प्लेस में घर बनाने के बाद पब्लिक वो बोलता है, ये बोलता है, उसको है ना टेंशन क्यों लेने का है? जो बोलने वाले बोलते रहते का, उसको शर्माने का भी नहीं है. चन्नमल्लिकार्जुन, आप ये भव में, ये ಭವದೊಳಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಬೆಳಕ, ಹಾಂ, ಭವದೊಳಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂಜಬೇಕು? ಹಾಂ, ಏನಾದರೂ ನಿಂದೆ ಮತ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವೀಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ದೆನ್ ವೈ ಟು ಬಾದರ್ अबाउट हु इज टेलिंग व्हाट? डोंट बॉदर. जो भी बोलेगा ना, डोंट, आई मीन यू कोपिसिಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. हाँ, डोंट गेट एंगर. मतलब मेरा बोलने का मतलब इतना है, अक्का महादेवी वो टाइम पे इतना सिंपल लैंग्वेज में इतना अच्छी तरह एकदम सबको टच करने का जैसा लिखा था. 33 लेडीज पोइट्स, नीलांबिका भी है उसमें, उसका साथ में बसवಣ್ಣ का सन चन्नबसवेश्वर, सभी लोग इतना बहुत किया. दो इट was established by Mahatma Basaveshwar, somebody has to run it. Anubhav Mantapa was running, headed by Allama Prabhu. अल्लम प्रभु जब भी बैठे थे वो टाइम अक्का महादेवी आए थे, शी वॉज टेस्टेड. मतलब ऐसा ही आया होएगा. बट आई एम गोइंग आउट ऑफ द वे. बट व्हाट आई वांट टू से, दैट टाइम 12th century जो अनुभव मंटप था, रियली आई एम फीलिंग टुडेज अनुभव मंटप, बिकॉज सभी लोगों से सभी टाइप का लोग, क्यों हर टाइप का लोग थे वो टाइम पे, इधर भी हर टाइप का लोग आया है. सो हमारा दिल में क्या था, एक अनुभव मंडप नई मुंबई में बनाने का है. उससे सिर्फ हमारा नहीं है, आई थिंक इधर जो भी जमा हो चुका है, इधर ऑलमोस्ट 90% हम गांव से आया है. मे बी इधर ही कुछ पैदा हो गया होगा 10%, नो प्रॉब्लम. हमारा वी नो व्हाट कल्चर वी हैव कम. आज भी गांव में ना कल्चर चलता है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब चलता है. मगर शहर पे आने के बाद वी फॉरगेट एवरीथिंग. परसों का दिन ऐसा ही हो गया. मैं शाम को ऑफिस से घर पे जा रहा था, सिग्नल पे एक छोटा लेडी आया, वो नागप्पा को लेके आया. आई रियलाइज कल नागपंचमी है. वी फॉरगेट एवरीथिंग. बम्बई आने के बाद है ना, बिकॉज एवरीबडी इज बिजी. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, एवरीबडी इज बिजी. बट हमारा लीगेसी जो है आगे लेके जाने का है. हाउ देयर शुड बी सम प्लेटफॉर्म. हमारा यो अनुभव मंडप जो हमारा दिमाग में सोच के रखा है, इट शुड फुलफिल नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ, इट शुड कीप ऑन गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन. वो ध्यान में रख के we are constructing this one at India's commercial capital, Bombay. No doubt, it is a very small place. 100% I agree. आप देखिए इस्कॉन टेम्पल, देखिए
दे विल स्टार्ट, छोटा सा, इतना ही छोटा रहता है सर, चालू कर देते हैं। मैं इधर खारगर में देखा है 10-12 साल से इतना ही छोटा टेम्पल दे स्टार्टेड। आज दिस इज द बिगेस्ट इस्कॉन टेम्पल इन द एंटायर इंडिया। मोदी जी आके इनॉग्रेशन करके गया। सो जो भी जर्नी पहुंचने के लिए फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायर्ड। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप अनुभव मंडप करने के लिए। इट इज नो डाउट, इट इज ओनली जस्ट 25 गुंटा का जमीन है। उसमें हमारा सचिन वाघ सर आर्किटेक्ट आया है। ही इज गोइंग टू गिव ऑल द डिटेल्स आफ्टर माई टॉक। ही विल जस्ट शेयर विथ यू हाउ इट इज डन एंड ऑल। दैट इज सेकेंड फेज में आएगा। बट जस्ट आई वॉन्टेड टू टेल यू हाउ व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन इन दैट एरिया। अभी देखिए उधर कुछ हॉल्स बना रहे। हॉल्स है 300 कैपेसिटी का एक हॉल है, 14 रूम्स है। अदर देन 14 रूम्स, स्वामी जी जब भी आएगा तो एकदम विशाल एक रूम, पूजा रूम, कुछ लॉन, ऐसा सब कुछ बनाया। उसका अलावा डॉर्मेंट्रीज भी है। ये सब देखने से मैं क्या बोलता हूँ, वी कैन यूटिलाइज प्रॉपरली। मेरा दिमाग में जो है, एनीबडी कैन गो फॉर द वीकेंड आल्सो। कुछ मेरा फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे, नहीं व्हाई डोंट टू स्टार्ट योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस। यस, मेडिटेशन के लिए खास करके बेसमेंट में एक 50 by 70 का अराउंड 50 पीपल कैन कंफर्टेबली सिट एंड डू द मेडिटेशन। मेरा दोस्त कोई एक बोला है, नहीं वो बहुत छोटा हो जाता है, टेरेस पे करेगा। यस, इट इज लेफ्ट टू यू, यू डिसाइड हाउ इट कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली। मेरा दिमाग में जो है मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मेडिटेशन सेंटर करने के लिए MMRD ने मना किया था, इट इज़ नॉट अलाउड लाइक दैट। हम स्टोर रूम करके अप्रूवल करके ले लिया। सी वी वे बैक, आई विल गो 9 years बैक, जब बड़े स्वामी जी जो थे उसका इच्छा था महात्मा बसवेश्वर अनुभव मंडप, इसको नाम रख सकता था मंडप करके, इसको नाम रख सकता था अनुभव मंडप रख के, इसको नाम रख सकता था बसवेश्वर अनुभव मंडप करके। व्हाई ही हैज गिवन महात्मा बसवेश्वर अनुभव मंडप, आई विल नॉट डिबेट ऑन दैट। Om Shri Guru Basavaliнгaya Namaha. A brief introduction of Parama Pujya Sriman Niranjana Jagadguru Dr. Tontada Siddharama Mahaswamiji. I offer my humble salutations to Parama Pujya Sriman Niranjana Jagadguru Dr. Tontada Siddharama Mahaswamiji, who graciously presided over the consultation meeting for the construction of the Mahatma Basaveshwara Anubhava Mandapa, organized with the cooperation of Sri Jagadguru Tontadare Vidyapita Trust, Mumbai branch, and Sri Jagadguru Tontadare Samsthana Matha. I also extend my respectful salutations to today's chief guest, Dr. Mahendra Kalyankar, a senior IAS officer from Maharashtra, and to all other dignitaries present at the meeting. Parama Pujya Sri Tontada Siddhalinga Shivayogi, the Shunya Peethadisha, insightful and spiritual leader belonging to the tradition of Allama Prabhu, a beacon of knowledge and a guiding star to countless devotees, carried forward the humanistic and egalitarian values of Mahatma Basaveshwara, the apostle of equality. Through spiritual discipline and tireless action, he propagated the social, religious, economic, and spiritual values of the Basava and Shivasharana traditions across Karnataka. Starting in the 12th century from Basava Kalyana in North Karnataka, this cultural movement spread southwards to Chamarajanagar, where Sri Tontada Siddhalinga Shivayogi of Haradanahalli further carried the tradition back northward, finally establishing the Tontadare Matha near Gadag, including Dambal and surrounding regions. Over the centuries, 19 Jagadgurus have graced this lineage. Their contributions span across socially, promoting gender equality, eradicating caste-based discrimination, establishing educational institutions,
Religious, emphasizing the importance of Guru, Linga, and Jangama. Economic, advocating the values of Kayaka, means dignified work, and Dasoha, selfless service. Spiritual, highlighting the significance of harmony between Linga and Anga, soul and body. Guiding people towards a morally and spiritually enriched life. Among these revered leaders was Jagadguru Dr. Tontada Siddhalinga Mahaswamiji, the 19th Jagadguru of the Tontadarya Matha, who became a prominent figure in Karnataka's religious and social history. Along with rejuvenating the Math, he became a loud voice of Kannada language, culture, environment, and social justice. He established the following key institutions: Lingayat Study Institute, Jagadguru Tontadarya Vidyapita, Sri Tontadarya Kalyana Kendra, daily Dasoha centers in Gadag, Haveri, and Ediyur. Many of these institutions served as mother organizations for numerous others. Especially the Lingayata Study Institute has published hundreds of important books promoting social and religious awareness. Continuing this legacy, on 21st 10/2018, Parama Pujya Sriman Niranjana Jagadguru Dr. Tontada Siddharama Mahaswamiji was enthroned as the 20th Jagadguru of the Sri Jagadguru Tontadarya Samsthana Matha, whose divine presence blesses today's gathering. Early life and education. Born on 12/12/1958 in Halagali village, Bilagi Taluk, Bagalkote district, Karnataka. Appointed as the successor of Hiremata Bilgi on 1/7/1971. Completed his MA in philosophy from Karnataka University, Dharwad in 1986. Appointed as the successor of Sri Naganuru Rudrakshi Matha, Belagami on 11/4/1988. Took full responsibility of the Math's development from Parama Pujya Sriman Niranjana Pranamaswarupi Shivabasava Mahaswamiji on 6/11/1989. Dedicating himself to community service and spiritual leadership. Inspired by Dr. Tontada Siddhalinga Mahaswamiji, he founded the publication division of Lingayata Academy in Belgaum in 1991. Lingayata Research Center Library 1/6/1995, which became a milestone in preserving and promoting Lingayata religious education. It houses ancient manuscripts, thousands of periodicals, over 20,000 books. In 2006, he launched the journal Lingayata Darshana, a significant publication that promotes Lingayata literature, philosophy, and profiles of prominent individuals. He significantly expanded the educational institutions under the Sri Siddharameshwara Education Trust, initially started by Pujya Shivabasava Mahaswamiji, especially founding the S.G. Balekundri Institute of Technology, which has grown into a premier institution. Fluent in Kannada, Hindi, and English, he is a prolific writer, translator, scholar. Some of his notable works include Dharmamrita, Vachanartha Chintana, Message of Islam, Bhakti Darshana, Chintana, Dharma Jyoti, Anubhava Dadige, Indian Philosophy, Taulanika Dharma Darshana. He has guided and supported numerous organizations in Karnataka and conferences, including 22nd All India Veerashaiva Mahasabha in 1992, 9th Karnataka History Conference in 1995, 5th Sharana Sahitya Conference in 1995, State Level Youth Convention 2001, 70th All India Kannada Literary Meet in 2003, where free food services was provided to lakhs of attendees. Beyond spirituality and education, he has contributed to environmental protection, agriculture, elderly care. Awards and recognition. The Rani Channamma University, Belgaum, has honored His Holiness with honorary doctorate in the year 2013 for his service. The Karnataka state government has awarded Karnataka Rajyotsava Award for establishing Lingayata Research Center Library. Kuvempu Bhasha Bharati, a subsidiary of state government, has honored Academy Award for his outstanding translations of two great works, namely Bharatiya Tattva Shastra and Taulanika Dharma Darshana.
developing Sri Naganuru Rudrakshimata Belgami in various directions, His Holiness played a pivotal role in the Lingayat independent religion movement initiated in 2017. After the demise of Dr. Thontada Siddhalinga Mahaswamiji in the year 2010-2018, amongst all the disciples, His Holiness Sriman Niranjana Jagadguru Dr. Thontada Siddharama Mahaswamiji became the 20th Peethadipati, head of the Peetha. As per the wish of Dr. Thontada Siddhalinga Mahaswamiji to the Jagadguru Thontadarya Samsthanamata Gadag, with the cooperation of Thontadarya Vidyapita Secretary Professor Shivanand Patnanshetty and manager Sri Mallikarjuna Angadi, he continues to efficiently manage and expand the Samsthan Mat and its numerous branches. I offer my heartfelt salutations to His divine presence and to this blessed gathering. Thank you, one and all. Hello everyone, good evening. I'll just in short show you the layout and will present you how it is going to be. ये ग्राउंड फ्लोर है. एक ग्राउंड फ्लोर में बेसिकली हम लोग ने पार्किंग दिया हुआ है एंड बाकी आरजी वगैरह दिया हुआ है. ग्राउंड फ्लोर में हम लोग ने और एक छोटा सा रेस्टोरेंट, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट एक रेस्टोरेंट और सम पार्किंग एंड आरजी मीन्स रिक्रिएशनल ग्राउंड ऐसे दिया हुआ है. उसके बाद हम लोग ने फर्स्ट फ्लोर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, फर्स्ट फ्लोर पे, या दिस इज द फर्स्ट फ्लोर. फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद यहाँ पे पूरा डाइनिंग एरिया है. डाइनिंग एरिया के साथ उसका जो भी सर्विसेज एरिया है, जैसे कि किचन है, स्टोर एरिया है एंड देन ऑल वॉशरूम्स है, वो एक तरफ दिया हुआ है. सेकेंड फ्लोर पे पूरी तरह इट्स अ हॉल जहाँ पे हम लोग 300 to 350 कैपेसिटी का एक कम्युनिटी हॉल टाइप किया हुआ है, जिसके साथ स्टेज है, फिर उसके सारे सर्विसेज है. और हम लोग ने एक डिज़ाइन में थोड़ा सा अलग एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जिसमें ये जैसे कि ये ग्राउंड प्लस 2 स्ट्रक्चर हॉल का है, पर उसको कनेक्टेड एक स्ट्रक्चर है और एक, हाँ, सो ये पीछे की तरफ एक बिल्डिंग है जो कनेक्टेड है ये बिल्डिंग के लिए साथ. तो ये बिल्डिंग में सारा हम लोग ने जैसे कि रेसिडेंशियल सम रूम्स दिए हुए हैं, कुछ डॉर्मेट्रीज दिए हुए हैं, एंड दिस दूसरा बिल्डिंग इट इज़ कनेक्टेड विद दिस बिल्डिंग. और हर एक फ्लोर पे हम लोग ने, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर में हम लोग ने यहाँ पे रेस्टोरेंट दिया हुआ है, और फर्स्ट फ्लोर पे वो प्रिपरेशन रूम्स फॉर हॉल्स वगैरह दिया हुआ है. और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे हम लोग ने 14 to 15 रूम्स दिए हुए हैं. और टॉप फ्लोर पे एक हम लोग ने स्वामी जी के लिए एक रेसिडेंस रेडी किया हुआ है. पीछे पहले वाला स्लाइड. तो इस तरह उसका पीछे का बिल्डिंग का लेआउट है, जिसमें फ्लोर्स पे रूम्स है, डॉर्मेट्रीज है. और ये 5th फ्लोर पे एक हम लोग ने एक रेसिडेंस रेडी किया हुआ है, जहाँ पे स्वामी जी आके कैन स्टे. ये एक हम लोग ने रिप्रेजेंटेटिव व्यू किया हुआ था, जो अभी जैसे डिस्कस हुआ है, हम लोग चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि सब लोग को चाहिए कि वो थोड़ा ट्रेडिशनल हो, तो उसके हिसाब से हम लोग इसका जो भी है लुक वो चेंज कर देंगे. सांगितलं. थैंक यू. अभी गदग स्वामीजी तोंडादेवी महाराजांच्या गदग येथील आणि नागनूर येथील मठाचे प्रमुख स्वामीजी त्यांनी विचारपूर्वक मुंबई आणि मुंबईच्या आसपासच्या लिंगायत बांधवांसाठी महात्मा बसवेश्वरांचे जे अनुभव मंडपाची संकल्पना 1200 सलीमध्ये मांडली, आणि त्याचा पुरस्कार देशाचे पंतप्रधान मोदीजी सतत करत असतात. आणि नुकतेच कुडल संगम आणि बसव कल्याण येथे त्याचे भव्य असे निर्माण कामही होत आहे. आणि त्याचसाठी महाराष्ट्रातील विशेषतः मुंबई, पुणे, पनवेल, डोंबिवली, कल्याण
येथील सर्व भाविकांना याचा अनुभव मिळावा, दैनंदिन आणि योग्य वेळी तिथे जाण्यासाठी वेळ मिळावा, प्रार्थना करता यावी म्हणून जी बसव कल्याण आणि कुडल संगम येथील अनुभव मंडपाच्या धर्तीवरती एक छोटेखानी परंतु तसेच हुबेहूब प्रतिकृती निर्माण करण्याचा जो मानस स्वामीजी आणि त्यांच्या गुरूंनी 9 वर्षापूर्वी कर्जत जवळील आणि पनवेल या दोन्ही गावाच्या मध्ये जी जागा आहे ती घेऊन ठेवलेली आहे. त्या जागेचा मला वाटतं 9 वर्षापासून उपयोग नव्हता. त्याचा आता येत्या नोव्हेंबरपर्यंतची वास्तूची जडतघडत सुरू होईल, भूमिपूजन होईल आणि त्या निमित्ताने गदगूट स्वामीजींनी इथे येऊन आज जे मुंबईमध्ये ही जी सभा घेतलेली आहे आपल्या सर्व बांधवाची, माझा सहभाग तर राहणार आहे, पण मी सगळ्यांनाच विनंती करतो की याच्यामध्ये हिरिरीने आपल्या तनमन धनाच्या सहकार्यातून याचा संगम घडवून आणावा, जेणेकरून हे अनुभव मंडप मूर्त स्वरूपास येईल आणि त्याचा वापर आपल्या सर्व बांधवांना इथे करता येईल. नमस्कार. मानतेश्वर सर, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ऐसा बताया कि आई एम वन ऑफ द गुड कंट्रीब्यूटर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट थोड़ा इट्स वेरी एग्जैगरेटेड टू से कि आई एम द ओनली पर्सन, आई एम वन ऑफ द engineers who wants to contribute towards the physical infrastructure. Let me introduce myself. You are looking at a person or a boy who decided to contribute to the physical infrastructure of the country, like say 25 years back. And I'm lucky कि मैं आज भी वो काम कर पा रहा हूँ, और सर का गाइडेंस, सर का आशीर्वाद होगा तो डेफिनेटली आगे भी वही काम करते रहेंगे. तो सीधा पॉइंट पे आते हैं. So I would request if you can show the location. सब लोगों को ये उत्सुकता ज़रूर होगी कि ये लोकेशन है कहाँ पे. तो अगर हम सर इस पे दिखा सकें गूगल मैप पे कि ये लोकेशन है कहाँ पे. चाहे मैं जितना भी बता दूं कि ये चौक स्टेशन पे जैसे ही आप उतरते हो वहाँ से 4 किलोमीटर के अंतर पे है. हाँ, बट कैन वी शो टू एवरीबडी. इंटरनेट नहीं है. अपन हम लोग बीच में विल ट्राई टू अरेंज द इंटरनेट एंड विल शो इट टू यू. ये वास्तु जो है मेरे हिसाब से मुंबई को सब जानते हैं. यहाँ पे 80% लोग, मैं इमेजिन करता हूँ कि मुंबई के बारे में सब जानते हैं. वेन एवर वी स्पीक अबाउट मुंबई, और मुंबई में कोई भी एरिया अगर हमको जानना होता है तो हम करते क्या है कि लोकल स्टेशन वहाँ पे कौन सा है. अगर हम दादर को पहचानते हैं तो दादर स्टेशन किसी नाम से, अगर हम कोई लोकेशन को पहचानते तो वो बस स्टेशन के नाम से. तो जो 153 स्टेशंस मुंबई रीजन में है, तो उनमें से चालू स्टेशन पे ये नहीं है, लेकिन ये बहुत ही प्रॉमिसिंग लोकेशन है. अगर किसी को पता है कि अगला रेलवे लाइन जो आ रहा है मुंबई रीजन में है वो पनवेल से कर्जत जाने वाला रेलवे लाइन है. तो जब हम कर्जत जाते हैं आज, तो हम लोग करते क्या है, CST जब निकलते हैं तो हम लोग ठाणे तक ऊपर जाते हैं, नॉर्थ जिसे बोलेंगे, उसके बाद फिर कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ करते हुए, नेरल करते हुए कर्जत पहुंचते हैं. तो फ्यूचर में होने क्या वाला है, आप जैसे ही CST से निकलते हो ट्रेन से, जब आप पनवेल तक पहुंचते हो, आज सबको पनवेल स्टेशन पता है, बट पनवेल से कर्जत ये 30 किलोमीटर की रेलवे लाइन जो बन रही है उसमें 5 स्टेशन है, पनवेल, चिखले, मोहपे, चौक और कर्जत. तो पनवेल से कर्जत जब हम जाएंगे फ्यूचर में तो इस रूट से जाएंगे, ना कि हम कल्याण बदलापुर से जाएंगे. तो ये जो लोकेशन है, ये चौक स्टेशन जो है, चौक स्टेशन से 2 से 2.5 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस, और रोड डिस्टेंस इज़ 3.8 किलोमीटर, और 6 मिनट में. सर मैं जैसे बताना चाहूँगा कि बिकॉज आई एम द फर्स्ट स्पीकर इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्या आप सैटेलाइट व्यू कर सकते हो? और थोड़ा सा नीचे खींचिए. यस, परफेक्ट. थोड़ा मैप को नीचे खींचिएगा तो आपको मैप के कॉर्नर में लेफ्ट में चौक करके दिख रहा है. ऊपर आगे लेफ्ट में थोड़ा और थोड़ा, हाँ ये उसके ऊपर चौक स्टेशन दिखेगा आपको. तो वो चौक स्टेशन है, वो रहा, और नीचे वहाँ पे वो वांडवल जो नीचे दिख रहा है वो लोकेशन है. इतना वो पास में है. सो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की पढ़ाई की है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही कोई वास्तु हम खड़ी करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता क्या है, तो वो वास्तु को आने वाले लोग, उनको वहाँ पे पहुँचाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक साल पहले मैंने परम धाम नाम से एक साधना संकुल है जैन धर्म का, पड़गा के पास नासिक में, नासिक हाईवे पे, मुंबई रीजन में ही है, वो हम पे मैंने विजिट किया। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब हम वहाँ पे गए, तो जिस दिन हम वहाँ पे गए उसके दूसरे दिन से मेरी जो बिटिया है 8 साल की, वो यहीं पे खेल रही है, उसने मेरे पैर छूना शुरू कर दिया था। अभी अचानक से ये पॉइंट पे मैं क्यों आया हूँ कि जब भी हम कोई अनुभव मंडपम है, कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं कि लोग वहाँ पे आए और ट्रांसफॉर्म होके वापस जाएं, तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाना। तो जैसे ही हम पहुँचाने की बात करते हैं, तो एवरी कॉमन मैन शुड रीच विथ नॉट मोर दॅन एक्सपेंडिचर ऑफ 40 रुपीज़। सामान्य माणसाला तिथपर्यंत पहुँचना, सामान्य आदमी को वहाँ तक पहुँचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 साल पहले अगर किसी ने वहाँ पे जगह लेके रखी है, तो ये डेफिनेटली एक विजनरी बंदा है जिसने काम किया है। वो चौक स्टेशन, तो वो जो इकोनॉमी है, वहाँ तक पहुँचने का जो साधन है, सबसे सस्ता होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। चौक स्टेशन तक आप शायद हार्डली 20 रुपये दे के पूरे मुंबई रीजन से बाई ट्रेन आ सकोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अगर हम ऐसे लोकेशन जाके बनाए, चाहे जितने बढ़िया वास्तु बनाए, एक सामान्य आदमी वहाँ पहुँच नहीं पाता। तो ये काम हो चुका है। उसके बाद हमने करना क्या चाहिए, जो शटल सर्विस होती है सर, तो स्टेशन से वास्तु तक और वास्तु से स्टेशन, अगर हम इस डायरेक्शन में काम करें कि एक शटल सर्विस वहाँ पे रखें, हर आधे घंटे में वही एक सर्विस वापस जाके आए। अगर कोई अपने पास फंड है या डोनेशन से हम लोग एक छोटी सी टेम्पो ट्रैवलर या एक छोटी बस या इवन टमटम ये हायर करके रखें, तो लोगों को हम वहाँ पे पहुँचा सकेंगे। ये पहला काम हो गया कि सामान्य आदमी वहाँ तक पहुँच गया। अब आर्किटेक्ट साहब अंदर बहुत बढ़िया साधन रहने के लिए और बहुत सारे एक्टिविटीज़ के बारे में बातें हो रही है, तो वो हो जाएगा। बट जब भी कोई सामान्य आदमी अंदर जाएगा और वापस ट्रांसफॉर्म होकर वापस आएगा, तो वहाँ जो अंदर एक्टिविटीज़ है वो ट्रांसफॉर्मेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज दैट्स नॉट माय पार्ट। मुझे जैसे सर ने कहा कि कनेक्टिविटी के बारे में बताना है, तो इस तरह ये ब्यूटीफुली कनेक्टेड है। तो जब भी आप किसी को बोलोगे कि ये वास्तु है, उसका ट्रांसपोर्टेशन पार्ट, उसका कनेक्टिविटी पार्ट ऑलरेडी टेकन केयर है। तो ये रेलवे के बारे में हो गया। MSRDC के मेरे सीनियर सर है वाडकर साहब, ही विल डेफिनेटली गाइड अस ऑन फर्दर जो कनेक्टिविटी है। और दूसरा पार्ट मैं इसको बताना चाहूँगा, दूसरी चीज़ एयरपोर्ट से, ये हो गया सामान्य आदमी के लिए। एयरपोर्ट से ये आज भी सिर्फ 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और 40-45 मिनट में अगर आप कार से आ रहे हो, एयरपोर्ट से पूरे जगभर से कोई आ रहा है, तो आज भी वो 45 से 50 मिनट के अंदर एयरपोर्ट से वो पहुँच पाएगा। तो इतना कनेक्टिविटी के बारे में बताना चाहूँगा। थैंक यू। और एक लास्ट चीज़ ऐसी है, जैसे सर ने कहा कि एवरीबडी शुड टॉक ऑन वन थिंग, कि हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस होल प्रोग्राम। तो सर मेरा एक सबमिशन रहेगा, मैं एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाला इंसान हूँ, और मैं एक योग टीचर भी हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों योगा टीचर्स हैं। हम दोनों आजीवन कभी भी अगर लगा और आशीर्वाद या आपकी आज्ञा हो, तो हम हाजिर हो जाएंगे योग के लिए और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। थँक यू सर। शरणात स्वामीजींना प्रणाम आणि मॅनेजमेंटलाही धन्यवाद की मला मोठ्या कार्यक्रमाला आमंत्रित केलेलं आहे। तर मी आता आणखीन जास्त काही न बोलता ही जी जागा मंडळीची आहे त्याच्याबद्दल एक इम्पॉर्टन्स सांगतो। मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली हे सर्व सिटी आता पूर्णपणे भरलेले आहेत। आता वाढायला क्षेत्र जे आहे ते चौक आणि पनवेलच्या पुढंच राहिलेलं आहे। आणि जे MSRDC एक प्रोजेक्ट करत आहे, जे माझ्याकडे आहे, विरार अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर म्हणून, की जो मुंबई नवी मुंबईला एक रिंग रोड म्हणून ॲड करणार आहे। तसाच नॅशनल हायवे JNPT चौक म्हणून एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनत आहे, जो ह्या चौकला येतो, जिथून JNPT आणि मुंबई डायरेक्टली कनेक्टेड होऊन जाईल वाया अटल सेतू। तर त्याच्यामुळे ही जागा फार एकदम मोक्याच्या ठिकाणची जागा आहे, आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटी तर अविनाश सरांनी एक्सप्लेन केलेलीच आहे। आता या व्यतिरिक्त नशिबाने
हा जो एरिया आहे MSRDCच्या प्लॅनिंगमध्येच येतं आणि याचं रोड नेटवर्क ड्रेनेजचं काम हे माझ्याकडेच सोपवण्यात आलेलं आहे. त्या व्यतिरिक्त MSRDC इथून एक 15 किलोमीटरवरती छावणी म्हणून गाव आहे, तिथे एक डॅम करणार आहे जिथून पूर्ण ह्या एरियाला वॉटर सप्लाय होणार आहे. आणि आमचे सल्लागार आहेत सिद्धू सर, तेही इथं उपस्थित आहेत. तर हे एकंदरीत आपल्या समाजाचं या ठिकाणी खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन होणार आहे. तेवढं मी बोलून संपवतो सर. थँक्यू. आणि लकीली आता जसं वाडकर साहेब बोलले त्या भागामध्ये MSRD स्टँडर्ड आल्यामुळं एक मोठं डॅमचं निर्माण करणार आहे. तर त्याचं कन्सल्टन्सी माझ्याकडं आलेलं आहे. आणि लकीली मी आता जागा मला वावंडाळ कळल्यावर वावंडाळच्या जस्ट आपली जी जागा आहे तिथनंच 1 किलोमीटरवर माझी पण एक 30 एकर जागा आहे भिलवले गावामध्ये. तर खूप कन्व्हिनियंट जागा आहे ती. आणि जसं सर म्हणले की ते चौकपर्यंत एक मोठं हायवे होणार आहे MSRDCचं. म्हणजे आपण नॅरिमन पॉईंटवरनं 1 तासात त्या वावंडाळला पोचू शकतो असं ते हायवे होणार आहे. आणि दुसरं अजून एक मी सांगतो, मला एक मोठं प्रोजेक्ट भेटलं आहे मुंबईमध्ये. मालवणी म्हणून एरिया आहे मलाड वेस्टमध्ये, जवळजवळ 140 एकरचा आहे. तर त्याचं पूर्ण SRA प्रोजेक्ट आहे तो. तर ते पूर्ण PMC प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी माझ्या कंपनीला भेटलं आहे. मी प्रयत्न करेन तिथं की आपल्या लिंगायत समाजाला काय जागा भेटेल का त्या एरियामध्ये. आणि अजून एक प्रोजेक्ट मी करतो आहे नवीन चंद्रपूर शहर जे आहे, जिल्हा जो आहे, त्या शहराला आम्ही नवीन चंद्रपूर, जसं मुंबईचं नवी मुंबई केलं आहे तिथंही आम्ही नवीन चंद्रपूर एक एरिया डेव्हलप करतो आहे म्हाडातर्फे. तर तिथंही 3,500 एकरची जागा आहे की माझ्या वतीने मी अजून तिथंही जागा आपल्याला समाजाला भेटेल का तेही मी प्रयत्न करेन. आणि गुरुजी माझ्या वतीने जेवढं काय करता येईल तेवढं मी करेन. And we needed it here because between Maharashtra and Karnataka we have all the lingats that one can think of. And I think it couldn't be more opportune. And there are a few thoughts I thought I'll just share with you. First of all, the presentation you showed is very technical. Make it simple. And you need help, I'll help you out. Okay? Because it has to be something which has to communicate to people as to what exactly it is. Frankly, I think that's one part of it. Second is when we're building something, it has to be really something that people will love to associate with. I think Swamiji has taken this first step of making it possible in Mumbai. So it is promoting our culture, and I think we couldn't be more luckier than this. Having people like Avinash, is great, because let me share a few things about what's happening. We are talking about just a few places. Now let me use some terms which will be useful. Maharashtra's GDP is $600 billion. So 4.2 trillion of India, 600 is only Maharashtra, which will go to 1 trillion. Okay? So this will become a very prominent state. It is still a prominent state. In this state, we have over 450 plus gazetted officers who are Lingayats. And it's very impressive. Bhumir Saab is there, so many others. So we have an ecosystem which is very strong. So I think one is that Dr. Mahendra Kalyanka, I call him Mahendra, is amazing, very supportive. I think what we have to do is to think that when Maharashtra goes to 1 trillion, which is in the next 7 years, and I know this because I work with the government also on many other things, then this should be the place people should remember to come. This New Bombay area is going to become the most productive from a revenue perspective also. I think we needed this here. So what is important also is we should not just think about making something which is good only for the local. They just spoke about it is close to the airport. Let's make it very international. When we talk international, it has to be of a certain class. It has to involve people. If you want, I could speak to the Kalyanis also. Baba Kalyani, I'm on the board of Bharat Forge also. We'll bring in people who will say, okay, let's make something which is exceptional.
So, I saw the building, yes, even I was like, maybe we need to do it a bit differently. I think, one, we are the people, 400 and plus this thing, we have committed people like him. We have to build world class. And you need ideas, we'll do it. Most of my work is in that part of the world, so that's why I'm saying, in fact, when Vishwanath called me up, I was in US, I just came this morning from US, and I couldn't, because for me this was something we needed. So I won't speak much, but let's build a world-class thing, and Swamiji has taken the lead. To make it world-class is our responsibility. Thank you. Next, let us speak of the Guruji. So I'll speak myself, Dr. Shivana Gowda, Sanagod. I'm from Karnataka, but working as a scientist in Mumbai, in Godrej also. So my suggestion is that already fulfilled, we need a yoga center, our community development, health and wealth, and Swachh Bharat mission and all. So I involved in the climatology, visited various countries. So few things, we need to focus on the environmental insights. What are the main things, like a reduction of energy? What will be the RE? I think renewable energy installation in our Anubhava Mandapam, and waste minimization, because of the major focus on the solid waste management. So solid waste management, how we can utilize in investing the organic waste converter, with that making the compost, and that will be benefitized in our horticulture development in and around our vicinity in Anubhava Mandapam. And carbon minimizations. So because Lingayat, we are the Lingayats, we are much aware many decades and centuries, we are much more focused on the environmental things. That will be the addition, because, and also recreational purposes. So what will be the best infrastructure developments need to be focused on the sustainable management, and that will enhance our community development. And further insights I will touch with our community members. Thank you. I work in L&T 25 years as a high-rise expert, and presently I am working with several builders as a advisor also. And whatever the building decision now taken, it should require a lot of changes in the architectural. Mantapa should look like a mantap, not any hotel building or commercial building. Secondly, it should have a spiritual elevations. Lot of people are now around the Karjat, they are constructing, even builder, house should look like a spiritual now. That type of design should be changed now. And this area is very permanent area after 10 years. 6 5-star hotels are coming in here. Already Taj has started the work with one builder. Oberoi has already started the work. And 350 acres land of Adani is developing with the bungalows. This is going to be one of the best area, central of Dadar. Now, कैसा दादर भी है, ऐसा करजत भी होने वाला है. Let us build a, सर ने बताया एक world class event ये होना मांगता है. That is, I can help you any design, exhibition, and even supervision also. And I am a good planner and also executor. I constructed 36 floor building with finishing in 18 months in a record time in Mumbai. Thank you. It's a great idea to have this Anubhava Mandap in Mumbai. And Swamiji and Vishwanathji. Actually, when the word comes from Vishwanathji, we are all here with his word. I know most of the people will not be knowing Swamiji, but Vishwanathji is a very known figure in Navi Mumbai. When he says something, we are there. And the idea which has been floated over here to have Anubhava Mandap in the Mumbai area to serve the Lingayats in and around Mumbai, it's really great. And as Virajji told us that it should be a world-class structure. It should be like that. And my focus will be on maintenance of the structure. Because what I have seen I am a retired additional commissioner from GST. What I have seen is that most of the structures, even government structures, they are built very nicely, very well.
when the inauguration happens, the structure is very nice. After 2-3 years, almost debilitated. No, a complete apathy. So, in our case, that should not happen. It should be self-sustaining. And when we say self-sustaining, what we are going to plan, where from the funds are going to flow. Actually, when we say self-sustaining, we should not need any more outside funds to sustain the structure. One thing. Secondly, the vibes, the energy. We should take care of that. The people should like to come over there. The structure should be, just like Virajji said, it should be world class. But then the vibes and the energy, that matters much in a structure, which is a religious structure. So that's it. And as I told you, I am coming from a taxation structure, taxation department. So if any need is required for this project of GST, we are there. Secondly, I want to just say that we have Virajji said 300. There are more than 600 class 1 officers in Maharashtra. They are from Lingayat community, and we have a group of the officers. We have worked with them also. So everyone is there to help help in their own ways, whatever ways they wanted to do. So we can do that. With that, I will just end my 2 words. Thank you. मैं गोरख शिखरे, बसव सेवा प्रतिष्ठान नाम से एक हम छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो लिंगायत समाज को मुंबई में जोड़ने का काम करते हैं। महास्वामी जी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज हाथ में लिया है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कर्नाटक में बहुत कुछ कर सकते थे महास्वामी जी, उनको लगा कि कर्नाटक के लोगों को या महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई में आज तक ऐसा कोई जगह नहीं है, ये उनको वहाँ से दिखा। इट इज़ वेरी बिग थिंग फॉर अस। एक बार जोरदार महास्वामी के लिए ताली होनी चाहिए। और इसमें इनिशिएटिव लिया हुआ है महंत शट्टर सर ने। ये 2 ऐसी हस्तियाँ इस प्रोजेक्ट में है तो हमें कोई शंका की बात ही नहीं है। हम बहुत छोटे हैं कि हम कुछ सजेस्ट कर सके। मेनी वैल्यूएबल पर्सन आर देयर। जैसे अभी कुलकर्णी सर ने बहुत ही कम शब्द में बहुत कुछ कह दिया। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा, अच्छे लोग हैं इसमें, हमारा जो भी सहयोग होगा वी आर ऑलवेज देयर। यहाँ पे इतने सारे रत्न हैं, अभी जिन्होंने बोला जो गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इनका सबका सहकार्य है, हम सबके साथ में है। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, सबका सहकार्य होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इसमें छोटे से लेकर बड़ों को एंट्री होनी चाहिए। कोई भी जाति धर्म का है उनको वहाँ वो होना चाहिए, यहाँ से आया वहाँ से आया ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जगह ली है वो तो ठीक है, बट हमें उसको बढ़ाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील दैट इज ए स्मॉल प्लेस, सो इट इज एवरीबडीज and particularly from CIDCO and other officers here, they are helpful. They should come forward and show us how we can get additional space. That is the most important, because when we say Mahatma Bashweshwar Anasuman, Bashweshwar का नाम इंडिया में ही नहीं। Even the all parliament, all type parliament, they give respect to the thoughts and the way 12th century he has done the thinking, जो आज भी हमारे बहुत जगह बहुत कंट्रीज में अभी तक उपलब्ध नहीं फॉलो कर रहे। और इंडिया में भी आपने कब किया है लेडीज के लिए, जो आपने बताया विश्वनाथ जी ने कि उस टाइम 35 लेडीज वेयर देयर। जस्ट इमेजिन, लेडीज बाहर नहीं जाती थी, वो वहाँ आई थी। तो हमारे यहाँ आई एम वेरी हैप्पी टू सी द लेडीज ऑल्सो कम। जो मेरा सबको प्रणाम है, आप सब जगह इंटरेस्ट लेके आते जाइए और आपका भी जो भी विचार है वो बता दीजिए। नाउ फर्स्ट आई विल टेल मी, I am myself is structural engineer, architect, and so and so. I retired as a chief engineer of Hindustan Liver Limited, and I work also as a consultant. 25 years back I retired. Now today I am 85. My feeling is there
one of the person has clearly mentioned, spirituality should come in structure it exhibit. When comes, when we go to a house and sit in our house, we should feel, yes, this is a house for me. Here, I don't want, this should look like one of the structures for resort or something is there. There should be the feeling of cultural and religious. I use the word particularly religious, so that whenever somebody goes, अरे मैं गया था भैया, उसमें ये कहाँ का हो सकता है? ओ, बसोम टाइम का है, कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है, जो भी है. यहाँ आप मत सोचिए यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक के ही लोग आएंगे. यहाँ जब बन जाएगा मंडप तो सब ऑल ओवर द इंडिया पीपल शुड कम एंड विजिट. So we will, my request, my friends to come forward and suggest how we can get additional space and roads. Roads, it is a very, very important approach road and facilities जो बता दिए बहुत अच्छे हैं. हम we are all for that one. शरण संकुल यहाँ है, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आपके लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे. I am thankful to all of you. Kindly be alert. Think over how additional things we can bring. There are many senior persons are there. Their opinion, take it and see what are the things that do attract. My friend, I am architect also, but I want, don't just make a building because my suggestion already put. Even the external, this one, should get something filled. Even just you make a small arch instead of window. You have shown the window. I am very thankful. Here are very good lights and other arrangement there. But it has to be slightly improved. Because that you can do, I know. That is not a big thing. Very simple additions we can do and improve. Now, another thing is maintenance, other problem mentioned. I do agree, this building should be not only think 30 years, 50 years. It is 100 and 100 years. I don't use only 100 and 100 years. आणि माझे 3 ते 4 सजेशन्स मी इथे देते आहे. मला वाटतं की हे अनुभव मंडप आता जी आपण चर्चा केली वर्ल्ड क्लास आपल्याला बनवायचं आहे. तर मला असं वाटतं की ह्याच्याबरोबर आपण जर पर्यावरणपूरक हे अनुभव मंडप जर बनवलं तर ते खूप चांगलं होईल. तर पहिलं सजेशन असं असेल की आपण सोलार पॅनल म्हणजे मेनली माझ्या डोक्यात आता एनर्जी सेविंग हे येतं आहे. आत्ता आपण जे 21व्या शतकात बघतो की एनर्जी क्रायसिस भरपूर आहे. तर सोलार पॅनल हे जर आपण इम्प्लिमेंट केलं तर खूप चांगलं होईल. दुसरं जो आपण पाण्याचा अपव्यय झालेला बघतो आहे तर त्याच्यासाठी वॉटर सेविंगसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हा प्रकल्पसुद्धा आपण जर ह्याच्यात इन्क्लूड केला तर खूप चांगलं होईल. आणि अनुभव मंडप हे जे मॉडर्न बिल्डिंगपेक्षा माझंसुद्धा असंच मत आहे की त्याला ट्रॅडिशनल वे म्हणजे एक भव्य दिव्य आणि हजारो वर्षांपर्यंत सुद्धा ते अतिशय सुंदर आणि आपलं एक धार्मिक वातावरण तिथे दिसलं पाहिजे अशी ती इमारत झाली पाहिजे. आणि त्या इमारतीमध्ये प्रवेश केल्यानंतर शांततेचा अनुभव आपल्याला कशा प्रकारे मिळेल की बाकी आपण एरवी आपल्या जे काही दगदगीचं जीवन असतं परंतु त्या इमारतीत जेव्हा आपण अनुभव मंडपमध्ये प्रवेश करू तर मन आपलं प्रसन्न राहिलं पाहिजे. ह्याच्यासाठी जास्तीत जास्त ग्रीनरी कशी इम्प्लिमेंट करता येईल आणि मोठी झाडं आणि त्याचप्रमाणे इंटेरियर डेकोरेशनमध्ये सुद्धा छोटी झाडं ज्याच्यामुळे एक ऑक्सिजन लेवल वाढेल आणि मन प्रसन्न होण्यासाठी शांती मिळण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. आणि चौथं मला असं वाटतं
की आता ॲक्टिव्हिटीज बऱ्याच तुम्ही सांगितल्या, त्याच्यात जर आपलं महत्त्वाचं भारतीय संस्कृती जर लग्न कार्यसुद्धा जर तिथे ट्रॅडिशनल पद्धतीनं करता आलं, म्हणजे त्याच्यात असं दिखावा नको आहे. जो काही आपली परंपरा असेल ती परंपरा आपली पाळून आपण जर तो कार्यसुद्धा त्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये इन्क्लूड केलं तर खूप चांगलं होईल. इतके माझे हे 3-4 सजेशन्स आहेत. आणि आध्यात्मिक आणि फॅसिलिटी असं इथं वेगळं केलं पाहिजे असं मला वाटतं. अध्यात्माच्या गोष्टी पुढे घेऊन पार्किंग असेल, हॉटेल असेल, लॉजिंग असेल ते बॅक साईडला किंवा बाजूला घेणं योग्य राहील असं मला वाटतं. थँक्यू सर. मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और महात्मा बसवेश्वर के वचन साहित्य पर थोड़ा बहुत स्टडी कर लेती हूँ. मुझे बहुत खुशी हो गई है कि यहाँ पर मुंबई जैसे इकोनॉमिक सिटी में अनुभव मंडप संपन्न हो रहा है हमारे सब के लिए गर्व की बात है. और दूसरी बात, मुझे थोड़ा गर्व भी हो रहा है. मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा बेटा एक ऑफिसर के रूप में इस अनुभव मंडप में अपना थोड़ा सा योगदान दे रहा है. अभी MSRDC में मुक्तेश वाडकर बोल के जिन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, उनकी मैं माँ हूँ. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भाई साहब ने बोला कि वहाँ पर ग्रंथालय होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए. मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि महात्मा बसवेश्वर अध्यासन सेंटर वहाँ पे हम क्यों न शुरू कर सके, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे स्टूडेंट्स महात्मा बसवेश्वर के वचन साहित्य पर रिसर्च कर रहे हैं. अगर हम ये द्वार उनके लिए खुला कर दिया, वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर शुरू कर दिया, तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकेगा. क्योंकि महात्मा बसवेश्वर के विचार शाश्वत है, चिरंतन है, मानवतावादी है और सभी समाज में ये विचार लेके जाना हमारा कर्तव्य है, हमारा ये निजी कर्तव्य है, ऐसा मैं सोचती हूँ. अगर हो सके थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये विचार हम सामने रखकर अगर काम किया तो बहुत बड़ा एक निर्माण का कार्य यहाँ पर खड़ा हो सकता है. इसीलिए मैं फिर एक बार स्वामी जी और सभी यंग जनरेशन के जो लोग हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मेरे 2 शब्द यहाँ पर समाप्त करती हूँ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಭಾ ಮಂಟಪನೂ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳನೂ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಥವಾ ಶರಣರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಪರಿಸರ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕೆಲವರೇ ಕುಂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗುಹೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 770 ಶರಣರು ಆಗೋದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಶರಣರು ಆಗೋದ್ರು. ಅವರ ಶಿಲ್ಪಾಕೃತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಈ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. मैं मेरे प्रोजेक्ट का यहाँ पे मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ, लेकिन जो जगह आने वाली है, जैसे हमारे MSRDC के बंधु है
सर है, कुछ 58 ईयर के सर है, 85 नहीं सर 58 एज है आपका, जो आपने बताया ना आपके एक्सपीरियंस, आपका और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हमको चाहिए। जैसा और एक सर ने बोला कि मेरे सबसे खड़गे सर, उन्होंने बोला कि जगह जो है वो छोटी है, लेकिन शुरुआत करने के लिए अपने को 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। इमीडिएटली एक्शन प्लान, जगह पे काम करना है। मैंने कोई आर्किटेक्चर हूँ, ना स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, ना कोई ब्यूरोक्रेट से हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट काम करने पे, एक्शन करने पे बिलीव करता हूँ। 2 चीज़ें अपने को करनी है साइमल्टेनियसली, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना और लैंड का एक्सपेंशन करना, कि जो मैं चाहता हूँ कि जो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो। और वहाँ पे मैं जो 300 साल के 365 दिन है, वहाँ पे मैं कार्यरत रह सकता हूँ। जो मेरे से बन सकता है, जो हम लोग कर सकते हैं, वो 100% आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, वो जगह पे हम लोग काम करने के लिए, दिन रात काम करने के लिए हम लोग वहाँ पे जो कर सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली वहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आश्वासित किंवा एक ग्वाही, एक प्रॉमिस या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या पवित्र व्यासपीठावर मी करू इच्छितो की या अनुभव मंडप उभारणीच्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून जी काही आवश्यकता लागेल, ज्या काही परवानग्या लागतील, कुठे तहसील कार्यालयामध्ये काम अडलं आहे, कुठे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये काम अडलं आहे, किंवा जर काही हे सगळं उभारण्याच्यासाठी पुढील काळामध्ये एखादा मोठ्या पद्धतीनं, चांगल्या पद्धतीनं शासनाकडनं काही अर्थसहाय्याची आवश्यकता असेल, तर त्याच्यासाठी नक्कीच आदरणीय एकनाथजी शिंदेसाहेबांच्याकडे पहिल्यांदा मी त्या ठिकाणी या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करेल, ही ग्वाही आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं देतो। आणि जे जे काही शक्य करणं आहे ते सगळं आपण या अनुभव मंडप उभारण्याच्यासाठी आपण करू। त्याच्यासाठी आम्ही टेक्निकल टीम करून घेऊ आणि टेक्निकल टीममध्ये तुमचे जो वेगळे जो मुद्दे आहे, टेक्निकमध्ये कसा हवा त्यांचा सगळा सर्वे करायला सांगू। आम्ही अनुभव मंडपासाठी त्यांना बसव कल्याणला पाठवून देऊ, कोडल संगमाला पाठवून देऊ, कुठे कुठे गेले तर सगळं जो आर्किटेक्ट डिझाईनकडे सगळं ते करून येईल। तर मी वॉटरफील्डमध्ये काम करत असल्यामुळे जे काही ह्याच्या आपल्या बिल्डिंगसाठी जे काही सहायता लागणार आहे त्याच्यासाठी मी मदत करण्यास तयार आहे। आणि माझे एक असं मत आहे की आपलं म्हणजे फक्त लिंगायत समाजाला आपण फोकस न करता असं एक सेंटर बनवा की ज्या ठिकाणी म्हणजे लोक असं, आपण जर लोणावळ्यावरून येत असताना आपण एक बघत असाल तर नारायणी धाम म्हणून आपल्याला एक सेंटर लागतं, तर लोक तिथे बघून असं म्हणजे लोकांची अशी उत्सुकता निर्माण होते की बाबा ह्या सेंटरमध्ये आपल्याला जायला पाहिजे, व्हिजिट केलं पाहिजेत आणि तिथलं त्या ठिकाणी गेल्यानंतर आपल्याला जी पॉझिटिव्हिटी आहे, तिथल्या वाईब्स आहेत, अशा वाईब्स आपल्या निर्माण झाल्या पाहिजेत की त्या ठिकाणी की लोकांनी स्वतःहून तिथे येऊन व्हिजिट दिलं पाहिजेत हे। आणि बरेच आपण म्हणजे ईशा एक सेंटर एक कोइंबतूरमध्ये पण आहे की ज्या ठिकाणी लोक म्हणजे जाण्यासाठी उत्सुक असतात, असं सेंटर बनवलं पाहिजे की ज्या ठिकाणी लोकांना म्हणजे वाटलं पाहिजे की इथे काहीतरी वेगळं आहे आणि त्या ठिकाणी लोक स्वतःहून येऊन व्हिजिट केलं पाहिजेत। मेरा यही था, एक कॉलेज का एक स्टूडेंट्स और एक स्टाफ जितना भी है, ये डेटाबेस स्वामी जी के पास है। अगर ये जो डेटाबेस के यूज़ करके हम उसको अप्रोच कर सकते हैं डोनेशन के लिए, सो दैट विल बिकम ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर कंटिन्यूस इनकम के लिए। दूसरी चीज़, कलेक्शन के लिए चेक के जगह अगर अकाउंट खोलने के बाद में क्यूआर कोड भेज देते हैं, ये इंस्टेंट अमाउंट जो है बैंक में इमीडिएटली डिपॉजिट हो जाती है। और इन टेक्नोलॉजी or in health services, we should brainstorm together. If we do it one day in 1 year, on the day of institution of the temple, it will be great. सगळं एक्सपर्ट लोक आहेत, तर माझ्या कुठल्याही प्रकारचं सजेशन नाही। माझ्या लाईफमध्ये माझी जी इच्छा होती, हे आपण ज्यांचे अनुयायी आहे तर त्यांचा मंडप होणं हे फार महत्त्वाची गरज होती। अनुभव मंडप हे होतं आहे, हेच माझ्या जीवनातला सगळ्यात मोठा आनंद आहे। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ। प्रातस्मरणीय बसवादि शिवशरणों का स्मरण करके इस सभा में उपस्थित सभी शरण बंधुओं को
शरणु शरणार्थी। शरणु शरणार्थी बोलने के बाद आप सभी लोगों को शरणु शरणार्थी बोलना चाहिए। ये बसवेश्वर जी का पहला पाठ है। जो भी आदमी शरणु शरणार्थी बोलता है उसके प्रति शरणु शरणार्थी बोलना चाहिए। कल्याण क्रांति के बारे में आप जानते हैं। कल्याण क्रांति का मूल बीज यही शरणु शरणार्थी है। आप बसवेश्वर जी का चरित्र पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। शरणु शरणार्थी। शरणु शरणार्थी क्यों बोलना चाहिए? जो आदमी आपको सम्मान देता है उसके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। रास्ते में आप जाते रहते हैं, आपका कोई परिचित आदमी आता है, आपको शरणु शरणार्थी बोलता है, आप ताली नहीं बजाते हैं। क्या बोलते हैं? शरणु शरणार्थी। मैं कन्नड़ भाषा में बोलना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे हिंदी में बातें करने के लिए सूचना दी, इसीलिए मैं हिंदी में कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप लोगों की बातें सुनते सुनते, जैसे मान शेट्टी बोले और हमारे आनंद गवी बोले, इन सभी के बातें सुनते सुनते मैं अपना भाषण तैयार कर लिया इधर। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि समय भी हो चुका है, उसके साथ मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ बातें मैं बोलूँगा आपके साथ। इस संदर्भ में मुझे आशीर्वचन भी देना है, उसके साथ साथ आप जो लोगों ने सुझाव दिया है उसके बारे में भी कुछ कंक्लूजन करना है। इस समालोचना सभा में उपस्थित सभी शरण बंधुओं, महात्मा बसवेश्वर अनुभव मंडप के बारे में आप लोगों ने जो भावनाओं को व्यक्त किया है उनको मैंने समझ लिया है। इस अनुभव मंडप को, महात्मा बसवेश्वर अनुभव मंडप को आप लोगों ने लिखा है, इट इज ए लिंगायत रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर। ये महात्मा बसवेश्वर जी का अनुभव मंडप, आप लोगों की मदद से उस अनुभव मंडप का निर्माण कार्य जल्द ही जल्द शुरू हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, मेरी इच्छा भी है। आप सब जानते हैं कि 12वीं सदी में बसवेश्वर जी ने इस अनुभव मंडप का स्थापना की। अनुभव मंडप सारी दुनिया में सर्वप्रथम संसद यानी पार्लियामेंट माना जाता है। आप सबको ये मालूम है, जिसे महात्मा जगज्योति मानवतावादी बसवेश्वर जी ने स्थापना की थी। जागतिक इतिहास में प्रजासत्तात्मक मूल्यों का प्रतिपादन करने वालों में बसवेश्वर जी सर्वप्रथम है। उनसे पहले किसी ने प्रजासत्तात्मक मूल्यों का प्रतिपादन नहीं किया है। इसी तरह जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग एवं लिंग भेदों को मिटाने वालों में भी बसवेश्वर जी सर्वप्रथम है। तो जाति भेद नहीं होना चाहिए, वर्ग भेद नहीं होना चाहिए, वर्ण भेद नहीं होना चाहिए और लिंग भेद भी नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी धार्मिक स्वातंत्र्य देने वालों में महात्मा बसवेश्वर सर्वप्रथम है। ये जागतिक इतिहास के बारे में मैं बोल रहा हूँ। समानता, कायक, दासों तत्वों का संदेश बसवेश्वर जी ने दिया है। जहाँ समानता होती है वहाँ संघर्ष नहीं होता है।
समानता बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ समानता होती है वहाँ संघर्ष नहीं होता है। समाज में शांति स्थापित करने के लिए समानता की आवश्यकता है। जो कायक करता है वही भक्त है। शरणों की दृष्टि में जो आदमी कायक करता है वही भक्त है। पूजा करने वाले भक्त नहीं होते, समझ लीजिए। जो कायक करते हैं, जो काम करके अपना पेट संभालते हैं वही भक्त है। जो दूसरे कमाते हैं, एक खाता है, वो भक्त नहीं हो सकता। दिन भर पूजा करने वाले कभी भी भक्त नहीं होते। जो कायक करते हैं वही भक्त होते हैं। तो कन्नड़ में एक वचन है, कृत्य कायकविಲ್ಲದವರು ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದುದು ಕಾಯಕವಲ್ಲ। कालवे महिला ये बोलती है, जो कायक नहीं करते हैं वो भक्त कभी नहीं हो सकते। और कायक भी कैसा होना चाहिए? वो सत्य शुद्ध होना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए, उसी को कायक कहते हैं। इस तरह का कायक जो करते हैं वही भगवान के भक्त माने जाते हैं। कायक में ज़्यादा कमी नहीं होती है। जो पठन करता है, पूजा करता है, और उसका कायक और जो चमार होता है उसका कायक, वो सभी समान है। बसवेश्वर की दृष्टि में कायक में ज़्यादा कमी नहीं होती है। बसवेश्वर जी ने कायक को इतनी महत्ता दी कि कायकवे कैलाश कह दिया। कायकवे कैलाश, कायक ही कैलाश है और काय ही कैलाश है। और मानव शरीर को भी उन्होंने महत्ता दी है, काय भी कैलाश है। उन्होंने श्रमिक लोगों को इज्जत दी, श्रम संस्कृति का सम्मान किया। जो श्रम करते हैं उनका सम्मान किया बसवेश्वर जी ने, वो श्रम संस्कृति का सम्मान किया। कायक से समृद्धि होगी। समृद्धि होने के बाद आदमी चुप नहीं बैठना चाहिए। जो समृद्धि होती है उसका वितरण करना चाहिए। उसी को महात्मा बसवेश्वर जी ने दासोह कहा। जो हम संपत्ति कमाते हैं वो बहुत महत्व की बात नहीं है। जो कमाते हैं उसको कैसे यूज करते हैं ये महत्व की बात होती है। इसीलिए बसवेश्वर जी ने दासोह तत्व का प्रतिपादन किया। समृद्धि के बाद उन्होंने बताया संपत्ति को कैसे यूटिलाइज करना है। संपत्ति का कुछ भाग अच्छे कामों के लिए, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना, इधर बसवेश्वर जी का अनुभव मंडप बनाना चाहिए। ये एक अच्छा काम है, तो बहुत से लोगों को वो उपयोग होगा। इसलिए ऐसे अच्छे कामों के लिए और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यों के लिए हम दासोह देना चाहिए, धन का दासोह करना चाहिए। अच्छे अच्छे कार्यों के लिए हर एक आदमी कुछ न कुछ देना चाहिए, यही दासोह है। आप सब लोग दासोह ही बने, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि ये काम पूरा होने के लिए सबको दासोह ही बनना बहुत जरूरी है। बसवेश्वर जी ने दया को धर्म का मूल समझा। जैसे पहले कुमारी वाणी ने बताया, दैवे धर्मद मूलवया, दया ही धर्म का मूल है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को सिर्फ भक्ति चाहिए। हमारे यहाँ अगर भक्ति है तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को क्या चाहिए? वो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हमारी भक्ति को ही चाहते हैं। भक्ति और कुछ नहीं है, केवल प्रेम। सातो परम प्रेम रूपा बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? सातो, सा मतलब भक्ति। भक्ति तो परम प्रेम रूपा, जो प्रेम होता है उसी को बसवादी शिवशरणों ने भक्ति कही है। भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे हम अपने को प्रेम करते हैं उसी तरह भगवान और बुजुर्गों को प्रेम करना चाहिए, यही भक्ति होती है। भगवान को प्रेम करना चाहिए, जो हमसे बुजुर्ग होते हैं ना, माँ, पिता,
गुरुजी, ये सब लोग जो बड़े होते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनको भी प्रेम करना चाहिए। यही भक्ति है। भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है। इन बातों को सिखाने के लिए ही अनुभव मंडप की ज़रूरत है। अनुभव मंडप की ज़रूरत क्यों है? इन सभी बातों को सबको सिखाने के लिए अनुभव मंडप की ज़रूरत होती है। इसलिए आप सब लोग मिल कर के अनुभव मंडप बनाने का तय किया है। अब इसके बाद आप सभी लोगों ने बहुत सी सूचनाएं दी है, सुझाव दिया है, अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। कुछ लोगों ने वास्तु के बारे में बताया, तो बसवेश्वर जी के सिद्धांत में, बसवेश्वर जी के तत्व में वास्तु कोई महत्व नहीं रखता, इसीलिए वास्तु के बारे में अभी सोचना नहीं है। और कुछ लोगों ने बताया और भी जगह हो तो लिंगायत समाज के लिए दिलाने की उन्होंने बात की है, कुछ लोगों ने बताया भी। तो ये बात जो है एकदम प्रशंसनीय है। अनुभव मंडप का एलिवेशन अभी मॉडर्न है, आप लोगों ने देखा है, लेकिन डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर जी ने उसे पारंपरिक बनाने के लिए सुझाव दिया है। उसी तरह एलिवेशन बनाया जाएगा। और कुछ लोग वहाँ जो अनुभव मंडप में योगा सेंटर बनाना चाहिए, कल्चरल सेंटर बनाना चाहिए, स्पिरिचुअल सेंटर बनाना चाहिए, ऐसी बातों को कुछ लोगों ने कही है, तो उसका भी विचार किया जाएगा। बहुत से लोगों ने विभिन्न रूप से योगदान देने का वाग्दान किया है, तो जो लोगों ने योगदान करने का वाग्दान दिया है तो अपना वाग्दान पूरा करे, यही मेरी इच्छा है। और कुछ लोगों ने बताया अनुभव मंडप में कुछ गुफाओं का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि कल्याण में शिव शरणों ने गुफाओं में रहते थे, तो उसके बारे में सोचा जाएगा। और कुछ लोगों ने बताया शरणों के चित्र के बारे में भी बताया, तो उसके बारे में भी हम लोग वहाँ शरणों का जो चित्र होते हैं, भाव चित्र जो होते हैं, उनका प्रदर्शन हम लोग जरूर करेंगे। और कुछ लोगों ने बताया यहाँ अनुभव मंडप बनाने के बाद वहाँ स्वामी जी होना चाहिए। स्वामी जी की ज़रूरत इधर बहुत है, कुछ लोगों को संस्कार देने के लिए और प्रवचन करने के लिए। बसवादी शिव शरणों का जो तत्व है, सिद्धांत है, मौल्य है, आदर्श है, उनको लोगों को समझाने के लिए एक स्वामी जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए स्वामी जी चाहिए। कुछ लोगों ने अपना अभिप्राय व्यक्त किया है, हम जरूर एक स्वामी जी को भेज देंगे, क्योंकि आनंद में हम लोगों ने स्वामी जी को भेजा है, वहाँ का कामकाज एकदम बेस्ट चल रहा है। हमारे छोटे साहब ने बताया तो अभी देना चाहिए, जो कल नहीं बोलना चाहिए। तो बसवेश्वर जी भी बोले हैं नाಳೆ ಬಪ್ಪುದು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ, ಹಿಂದೆ ಬಪ್ಪುದು ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ಬರಲಿ। ऐसे उन्होंने अभी अपना डोनेशन दे दिया। कल नहीं बोलना चाहिए, कल तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे कौन जाने, जो देना है अभी देना है, ऐसा भी उन्होंने बात बताया। उन सब के लिए आप भी सोचिए। और इसके साथ अगर कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो वे सब लोग चेक के रूप में विश्वनाथ महान शेट्टी के पास, आनंद गवी के पास और हमारे जो खास कार्यकर्ता है उनके पास आप दे सकते हैं। कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं, आप उनका ऐसा काम कर लीजिए। इस तरह आज का जो मीटिंग है ये एकदम सक्सेसफुल है। आप सभी लोगों ने हमको बहुत ही सम्मान किया है। उसके साथ साथ आप सबको कुछ प्रसाद देने का इंतजाम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, तो आप सब लोग हमसे प्रसाद लेके, प्रसाद मतलब एक विभूति और प्रसाद और एक किताब, ये सब लेके आप अपना घर या जो प्रसाद की व्यवस्था की है उन लोगों ने, प्रसाद लेके आप अपना घर जा सकते हैं। यही मेरी इच्छा है। और इसके साथ साथ ये अनुभव मंडप का कार्य जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। सब लोग बोले हैं
ये श्रावण मास है, इसी महीने में अगर शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सब लोग उसके बारे में सोचिए, ये आपको छोड़ देगा।